करण में आपी दो फूल आपी दो श्री रूप अनंत कोटि वैष्णव गोसाई महाराज की जय जय श्री Can we offer the flowers, please? Oh my परिस्थिति के साथ अरे इधर पर जगह बन जाएगी चलिए बैठो प्रभु जी बोलो कह रहे हैं कीर्तन हो गया 1 घंटे से कह रहे हैं कीर्तन हो गया 1 घंटे से कथा की जरूरत 1 घंटा से ज़्यादा रास्ते करना
मुझे बोली ना भाषा ये रख ये बैठे ये मेरा ये नहीं ये जो छोटा छोटी मेरी एक साल का नहीं ये एक साल का किशोरी ले जाओ माँ ले जाओ कितने दो बाकी है बाकी है और भक्तों सब आ गए वो राधा प्रिया आई राधा प्रिया वो बेटे राधा प्रिया is here so she's going to talk soon. No. अपने कीर्तन के हम बात अधूरा है सफाई तो अधूरा है ये कीर्तन अधूरा है वो हम तंग था दुर्लभ मानव जना लभिया संसारे दुर्लभ मानव जना लभिया दुर्लभ मानव जना लभिया
विहंग पतंग तया विहार उगर सुगाला सबा आनंदित महोत्सवकारी बे अमर
Hi. Hi, Yana. ये रस्ता ऊपर ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम હું આ દીક્ષા ગુરુ શ્રી ગોસ્વામી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડ પ્રણામ કરું છું। ત્યારબાદ બ્રહ્મ માધવ સંપ્રદાયના સર્વ ગુરુઓના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું। આજે આપણે સૌ પ્રથમનો ગૃહ પ્રવેશનો ઘરનો પ્રોગ્રામ પ્રથમ દિવસ છે। શ્રી હસમુખભાઈ પરમારભાઈના ઘરે જે આપણી સોસાયટી કે જે આપણો પ્લોટ એમાં પડેલો છે એમના પ્રમુખ છે એ આપણા મંદિરમાં સક્રિય રસ લે છે ને સારું મહત્વ ધરાવે છે। તો આપણે એમના ઘરે આવી અને આપણા ગુરુદેવના ચરણ પદ્મ એમના ઘરે આવીને પાવન છે, એનું ઘર પાવન થયેલું છે। આપણે હમણાં એટલું ગીત જોયું કે દુર્લભ જન્મમાં લભિયા સંસારે। આપણે બહુ જાણીએ છીએ બધા કે આપણો મનુષ્ય જન્મ કરોડો યોનિમાંથી પસાર થઈને પછી આપણે માનવ જન્મ મળે છે, એક માનવ દેહ મળે છે। આ માનવ દેહ આપણે સામાન્ય રીતે સંસારના કર્મોમાં, આસક્તિમાં, મોહમાં, માયામાં, ભાઈ, પતિ, પત્ની, પુત્ર, પુત્રી, આખા પરિવાર અને સમાજ એમાં આપણે આપણો સમય વ્યતીત કરીએ છીએ। આપણે બધા એવું માનીએ છીએ કે આ ભજન તો છેલ્લી કક્ષાની વસ્તુ છે, હંમેશા છેલ્લે જ થાય। જ્યારે ઘટપણ થાય આપણી બધી ઇન્દ્રિયો ક્ષીણ થઈ જાય, આપણે ચાલી ન શકીએ, આપણે સાંભળી ન શકીએ, એ સમયે આપણે ભજન કરીએ એવું એક સામાન્ય લોકો માને છે। હકીકત એ નથી। સાચી હકીકત તો એ છે કે આપણે શરૂઆતથી જન્મ્યા ત્યારથી આપણામાં એક દાસ્ય ભાવ છે કે આપણે કૃષ્ણના દાસ છે। એ આપણો જન્મ જીવ જે છે એનો આ ભાવ છે કે તમે હંમેશા જ્યારથી તમારું જીવનું ગઠન થયું છે ત્યારથી તમે કૃષ્ણના સદાય દાસ છો। પરંતુ આપણે જન્મ પછી એ ભૂલી જાય છે। આપણે આપણા સંસારમાં આપણા મા બાપ કે પ્રમાણે, આપણા ટીચર કે પ્રમાણે, આપણા સગાવાલા કે પ્રમાણે, આપણા ભાઈ બંધુ કે એ પ્રમાણે સંસારની મોહ માયામાં, સંસારના પ્લેઝરમાં, આનંદના સ્વભાવ પ્લેઝરમાં આપણે ડૂબી જઈએ છીએ। આપણે એને સર્વસ્વ માનીએ છીએ। ખરેખર જે આનંદ છે, બ્લિસ છે, જે બ્લિસ છે એ ભક્તિમાં છે। અને એ ભક્તિમાં કઈ કે જે ભક્તિમાં કૃષ્ણ ખુશ થાય, આપણે નહીં। આપણે જે સંપ્રદાયમાં છે એ પરકીયા ભાવ છે। પરકીયા ભાવ એટલે કૃષ્ણ ખુશ થાય એમાં મારું ખુશ છે, કૃષ્ણ મને ખુશ કરે એમાં મારું સુખ નથી, એમાં મને આનંદ નથી। પણ મારા જે કોઈ કર્મ કર્યું, હું જે કોઈ કર્મ કરું, હું જે કાંઈ પણ ક્રિયા કરું, એ ક્રિયા કે જેનાથી ભગવાન રાધા કૃષ્ણ હંમેશા ખુશ થાય, હંમેશા આનંદ પામે, હંમેશા સુખ પામે, એ ક્રિયા જ આપણું સર્વસ્વ છે। એ જ ક્રિયા આપણા એનો મંત્ર છે, એનો સાર છે। આપણા સંપ્રદાયનો સાર એ છે કે કૃષ્ણ કેવી રીતે ખુશ થાય। જેમ કે ગોપીઓ પોતા માટે કરતી નથી, કારણ કે પોતાને ઓલરેડી પત્ની છે, ઘર છે, સંસાર છે, છતાં એ કૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્વનિ બંસી ધ્વનિ સાંભળીને ગમે ત્યારે બધા લોક લાજ બધું છોડીને એમની પાસે દોડી જાય છે। શું કામ કે એ બંસીના ધ્વનિથી દોડીને કૃષ્ણની સેવા કરવાનો એને લાવો મળે છે, એને મોકો મળે છે।
એટલે કે એ કૃષ્ણને સુખી કરવામાં, એ આનંદિત કરવા માંગે છે. એટલા માટે ગોપીઓ હંમેશા કૃષ્ણને વાલી છે. દ્વારિકામાં એમને મહિષીઓ વાલી નથી, એટલી વાલી નથી જેટલી ગોપીઓ વાલી છે. એટલે હંમેશા શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે દ્વારકામાં રહીને એને હંમેશા ગોપીઓનો વિરસ મળ્યો છે અને એ હંમેશા રમતા રહ્યા છે. એટલે હંમેશા ગોપીઓને જો સાંભળીને એને હૃદય દળી ઉઠ્યું છે. એટલે ગોપીઓ જેટલી વાલી છે એટલું એટલે કોઈ વાલી નથી. એમાંય રાધા તો સર્વશ્રેષ્ઠ છે. રાધા શિરોમણી છે, પ્રેમની શિરોમણી છે. એટલે આપણો પણ એક પરમ કર્તવ્ય છે અને આપણું પણ એક ધ્યેય હોવું જોઈએ કે આપણે ગોપીઓ જેવો પ્રેમ ભાવ પામીએ કે જેને કારણે આપણે ભગવાન કૃષ્ણને, ભગવાન રાધાને ખુશ રાખી શકીએ. આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ કે શ્રી હસમુખભાઈ પરમારને ઘરે ખૂબ સુખ શાંતિ થાય, એક એનું કુટુંબ કૃષ્ણ ભજનમાં રાધા કૃષ્ણના ચરણોમાં સ્થાન પામે એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું છું અને ગુરુદેવને પણ પ્રાર્થના કરું છું કે એના પર કૃપા વર્ષણ કરી અને એમને એમનો ખુશ હિત કરે, શ્રેયસ્કર કરે, પ્રેયસ્કર નહીં. લોકો પ્રેયસ્કર માંગે છે, પ્રેયસ્કર નહીં, શ્રેયસ્કર કરે. જે શ્રેયસ્કર, જે શ્રેય આપે છે એવું કરે, એવું મારે ગુરુદેવને પ્રાર્થના કરી અને વિનવું છું કે એમના પર હંમેશા કૃપા વરસાવી, એમનું શ્રેય કરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃષ્ણ બિંદુભ્યશ્ચ કૃષ્ણાય વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન નામ લઈ લો, હરે કૃષ્ણ બોલી લો. બોલો हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा કથા
वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतोर्भं मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुजौ श्रीराधा मदनमोहन दिग्बोधविन्दारण्यकल्पद्रुमादस्मद्रत्नागर सिंहस्तनस्तौ श्री श्री राधा कृष्ण गोविंद दिग्बो प्रेष्ठालिभौ सर्वमानुस्मरामि श्रीमान रासरसारम्भी वंशी वटतरस्थिता कर्षण वेणु शनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नमः तवैवास्मि न जीवामि तया विना हे तेराधि तंग नयामि चरणान्ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 श्री गुरुदेव की जय। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा जथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रस की बात है, हम लोग साक्षात गुरुदेव की चरण कमल के सानिध्य में बैठे हुए हैं तथा श्री विग्रह क्या रखा है? गोपाल है वो विग्रह क्या है? राम जी राम सीता राम लगा है अयोध्या के राम। अच्छा हाँ, घर में राधा कृष्ण रखो अच्छा रहता है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण इधर ले रखो, उसको ले आओ। निखर से हाँ इधर है, इधर है। तो नहीं पता गिर जाएगा, उसको कैमरा में आ जाए।
वे मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। अभी हमारे प्रभु जी ने कीर्तन किया, दुर्लभ मानव जन्म पाइया, कृष्ण भजन दुख कोई वो कहारे गया। 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते यह मनुष्य जन्म शरीर हमें प्राप्त हुआ। कहाँ गए कर्मकर्ता? कहाँ गए गृहकर्ता? आ जाओ। हैं? अरे ऊपर नहीं बैठने, इधर बैठो। आइए, 2 शब्द सुनिए। हाँ, 84 लाख जनी भ्रमण करते करते यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्ति हुई। ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिल गया। इसके लिए पद्म पुराण भी स्टेटमेंट देते हैं, हस्त में लिखा गया, कोई विश्वास करे अथवा नहीं करे, कोई आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो। आस्तिक नास्तिक समझते कि नहीं? आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक किसको कहते हैं? भगवान को जो श्रद्धा रखता है, जो भगवान के विश्वास करने वाले उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर परकाल आत्मा के विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक है। थीस्ट एंड एथिस्ट। कोई आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो, किंतु आप अच्छी तरफ से यह समझ लीजिए, यह मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है, जिसके लिए पद्म पुराण कह रहे हैं जलजा लवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति कृमया रुद्र संखक 30 लक्षानि पक्षिण 20 लक्षानि पशव चतुर्लक्षानि मानव। स्टेटमेंट दिया गया। जलजा लवलक्षानी, जल के अनेक वर्ग कीड़े मकड़े जो है कितने बार जन्म लिया? 9,900,000। जलजा लवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति, पेड़ पौधे होकर के जो चल नहीं पाते स्थावर कहा जाता है। ये 20 लाख जन्म हमारे चला है। पहले कितने हो गया? 29 लाख। कृमया रुद्र संखक, रुद्र संखक माने 11 लाख। 11 लाख विष्ठा के कीड़ा होकर में जन्म लेना पड़ा। विष्ठा समझते हैं? मलमूत्र की जो विष्ठ कीड़ा होता है, छोटे छोटे कीड़ा होते हैं, कृमि होता है। ऐसे करें कृमया रुद्र संखक। रुद्र संखक माने 11 लाख जन्म, 1100,000। कृमया रुद्र संखक 30 लक्षानि पशव, 30 लाख जो है पशुजनी हमें प्राप्त हुई। और इसके पश्चात 10 लक्षानि मानव, 10 लाख जनी जो है ना, 10 लाख पक्षी हो गए जन्म लेना पड़ा। तो कितने हो गए? 80 लाख हो गए। और रह गया कितना? 4 लाख चतुर्लक्षानी मानव। वो भी सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। 2 हाथ 2 पैर है, किंतु पशु के भांति हम जीवन बिताए। जैसे शिल्पांजी नाम सुना कि नहीं? बबून इंग्लिश में कहते हैं, बबून है तो मनुष्य की भांति, 2 हाथ 2 पैर भी है, किंतु देखो पशु की भांति जीवन यापन किया। अर्थात आहार निद्रा वैमैथुनं च, आहार निद्रा वैमैथुन में ही जीवन बिताया। किंतु अभी जो हमें मनुष्य शरीर मिला है,
इस मनुष्य शरीर में हम कुछ भगवत भजन कर सकते हैं, सत्संग हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो, सत्संग सबकी प्राप्ति नहीं होता है। साधु आने पर भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा यदि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो। इसलिए कह रहे हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ होने। केवल ही मनुष्य शरीर प्राप्ति हो के भी नहीं होगा यदि सत्संग प्राप्ति नहीं। ये सत्संग की तात्पर्य है साधु की जो भाव हम प्राप्ति करना। साधु की भाव प्राप्ति करने के लिए अपने अहंकार को त्याग देना पड़ेगा। क्या त्याग देना पड़ेगा? हमारे पास अहंकार क्या है? मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं। 4 प्रकार के जो अभिमान जिसमें रहता है। क्या क्या अभिमान रहता है? उच्च कुल में जन्म, ये अभिमान हो जाता है। दूसरी विद्या, ज्ञान किसी को प्राप्ति हो जाए उसके अभिमान हो जाता है। ऐश्वर्य, किसी के पास धन प्राप्ति हो जाए वो भी अभिमान हो जाता है। और तीसरी, देखने में बहुत सुंदर हो। ये 4 प्रकार के अभिमान के द्वारा जीव मत हो जाते हैं, उनकी भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें सत्संग में रह करके भजन करना। सत्संग के जब जितनी भक्ति होगी, भक्ति के लक्षण क्या हो जाएगा? भक्ति किसी में हो अपने आप तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में 3 श्लोक में वर्णन किया है। तृणादपि सुनीच, पेड़ तृण से भी अत्यंत दीनी होना पड़ता। तृणादपि सुनीच, देखो तृण घास में भी एक अभिमान है। घास में क्या अभिमान है? मैं घास हूं। देहात में अभिमान हो रहा है। यदि वो घास के ऊपर पैर रख दिया जाए, घास भी वो आपके विरोध करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा? क्या विरोध करेगा? क्यों मेरे पर पैर क्यों रखा? वो भी आपको पैर में सुई के भांति करेगा। क्यों? एक देहात्म अभिमान रहता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कैसे अत्यंत दीनहीन होने चाहिए? तृणादपि सुनीचे। बोलना बहुत सहज है, किंतु जीवन में अपनाना ये बहुत कठिन है। तृणादपि सुनी तरोरिव सहिष्णुना। पेड़ के भांति कैसे होनी चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए, टॉलरेंस। टॉलरेंस पेड़ से भी और भी कैसे होनी चाहिए? टॉलरेंस होना चाहिए। अच्छा, पेड़ से अधिक कोई टॉलरेंस हो सकता है? बोले नहीं है। पेड़ देखो एक जगह में खड़े रहते हैं, ठंडी गर्मी उसको सहन करना पड़ता है। धूप में पत्ता जल रहे हैं, सहन कर रहे हैं। आग जलती हुए आ रहे हैं, आग में पेड़ की आधी जो है पत्ता जल गए, डाल जल गए, तथापि पेड़ सहन कर रहे। प्यास में तड़प रहे हैं, किंतु एक बूंद पानियों नहीं मांगते। किंतु पेड़ में ऐसे एक महानता है, देखिए, है परोपकार में लगे। उनके सारे शरीर क्या है? परोपकार में ही लगे हुए हैं। जिस कुल्हाड़ी के द्वारा हम पेड़ को काटते हैं,
उस पेड़ छाया देते हैं। जिस कुल्हाड़ी के द्वारा हम पेड़ को काट रहे हैं, और देखो वही पेड़ अपने सुगंध कुल्हाड़ी को भी दे रहे हैं। जैसे चंदन पेड़ कहा जाता है, चंदन के पेड़ काटने पर और सुगंध किसको देते हैं? पहले कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी से उनको दे, देखो छाया भी दे है और अपने सब कुछ परोपकार में लगा देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु करे त्रिनाथ विषय तरोरिव सहिष्णु, और अमानी मान देना, दूसरे के सम्मान देना और अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा को त्याग देना। इसी कारण तब हमारे मुंह में ये शुद्ध हरि नाम प्रकाशित होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए इस्लाम के लिए मनुष्य जन्म इतने दुर्लभ है, और ऐसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति करके यदि कृष्ण भजन नहीं किया, लाभ कुछ नहीं। धन संपत्ति सभी के इकट्ठा करते रहते हैं, किंतु समय आने पर इस सारे वैभव को हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक काना कौड़ी जाएगा साथ में, एक सुई और एक धागा जाएगा किसी के साथ? अच्छा, सब तो जानते हैं, करते क्यों हैं? हाँ भाई बताओ। एक साधु भी धन इकट्ठा करते हैं, एक गृहस्थ भी धन इकट्ठा करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? आप बताओ, अभी बताओ क्या अंतर है? ये नहीं अपन डालते हैं और पछता भी खींचा क्या है, अपने अपने करते हैं खींचे के लिए, पीछे के लिए। ये अपने एक साधु जो धन इकट्ठा करते हैं, वो इकट्ठा करके मठ मंदिर बनाते हैं, जैसे हजारों लोग आकर के आत्म कल्याण में लाभ उठाए, ऊपर गर्भ में जाते हैं। और एक साधारण गृहस्थ जो धन एकत्रित आदि करते हैं, अपने पुत्र संतान आदि के लिए करते हैं। अच्छा संतान हो तो भगवत भजन में लगेंगे, और यदि नहीं तो शराब पी करके सारे धन को उड़ा देंगे, लुटा देंगे। लाभ क्या हुआ? आपने इतने कष्ट करके धन को एकत्रित किया और वो धन को पुत्र को दिया, जो अच्छी पुत्र नहीं है वो शराब पी करके व गलत काम करके सारे धन को, आपके सारी मेहनत क्या हो गई? सब पानी के पानी हो, बेकार हो। लाभ हुआ? कुछ हुआ? कुछ लाभ नहीं। इसलिए करे दुर्लभ मनुष्य जन्म पाइया, कृष्ण नाम भोजन दुख कही वो कहा किया। और देखो जब शरीर छोड़ देंगे, इस शरीर को क्या करेंगे? मानो आप 7 मंजिल बनाए, कितने मंजिल? 7 लेवल बिल्डिंग बना दिए। घंटे भी नहीं रखेंगे। अच्छा, उसके पहले कहाँ लिया जाता है? एक एक मंजिल के नीचे लाया जाता है, 7 से 6 मंजिल पर लाया जाता है, 6 से 5 मंजिल पर लाया जाता है शरीर को, फिर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 मंजिल, 2 मंजिल से 1 मंजिल, 1 मंजिल से ग्राउंड फ्लोर में लाया गया। ग्राउंड फ्लोर में ला करके क्या है? हिंदू शास्त्र के अनुसार कहाँ रखा जाता है? तुलसी तला में रखा जाता है। 7 तला से कहाँ आ गया? तुलसी तला है। और वो तुलसी तला में रख करके अच्छी तरह से आपको रस्सी के द्वारा बांधे देंगे।
और 4 व्यक्ति कान में लेकर के जाएंगे। कहां ले जाएंगे? हैं? संसार घाट में ले जाएंगे, धर्मतला में ले जाएंगे। यही और इसके बाद शरीर को जला देंगे। यही तो जीवन की परिणति है। इसी के यदि हम समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो संसार में हम माया मोह में नहीं फंसेंगे। इसलिए कह रहे किसी के संसार ही छायाबाजी प्राय इहाते ममता करी बिता दे जाए। हाय हाय नहीं भावी अनित्य सब जीवन विगत गले कोथा रही वे वैभव। शशाने शरीर मम पड़िया रही कुकुर सियाल ताते बिहार करी। कह रहे हैं इसे बंगला कीर्तन में। ये सारे कथा जो है श्रीमद् भागवत में कपिल देवहूति संवाद में ही लिखा गया और उसी कथा को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर संस्कृत श्लोक से बंगला अनुवाद करके ही कीर्तन में रखा गया। भागवत का ही श्लोक है। इसलिए जीवन की एक तात्पर्य है भगवत भजन करना। हम नहीं कर रहे हैं घर संसार छोड़ करके चले जाए अथवा माता पिता भाई बंधु के प्रति आदि न करें, ये हम नहीं करें। ठीक है, संसार में सभी रहें, किंतु संसार में कैसे रहना चाहिए? कृष्ण केंद्रित करके। क्या बोला? शब्द में याद है, तात्पर्य समझ में आया कि नहीं? कृष्ण केंद्रित के कौन है? कृष्ण केंद्रित के तात्पर्य क्या है? टू सेंट्रलाइज टू कृष्ण। कृष्ण के यदि नहीं रखा, घर में कृष्ण की मूर्ति नहीं रखा, कृष्ण की पूजा नहीं किया और सभी पूजा कर लिया है, बोले सब व्यर्थ हो जाता है। धर्म मूलंग ही कृष्ण। एक श्लोक याद रखिए, धर्म मूलंग ही कृष्ण। समस्त धर्म की मूली कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है। यदि घर में ये ऐसे कृष्ण नहीं रखा है तो बैठते। अरे कहां जा रहे? बैठो भाई, 2 मिनट बैठो। हाँ, कृष्ण के रखो। कोई भी काम भी करे, कुछ भी करे, क्या करो? कृष्ण के रखो। यदि भगवान कृष्ण के संसार नहीं रखा तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। देते कौन है? सब भगवान दे रहे, कृष्ण दे रहे। यहां तक भी जितने देव देवियां है, ये देव देवियां गणेश जी को क्या कहा जाता है? सिद्धिदाता कहा जाता है। ये गणेश जी कहां से लेकर सिद्धि देते हैं, धन संपत्ति देते हैं? कृष्ण भगवान से। यथा प्रणाम समय, जब गणेश जी स्तुति करके भगवान के चरण में नतमस्तक हो जाते हैं, सिर को झुकाते हैं, और उस समय स्वयं भगवान कृष्ण उनके कंधे पर अपने चरण को रख देते हैं और भगवान के चरण से सारी रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाता है। और गणेश जी वही रिद्धि सिद्धि को प्राप्ति करके लोगों के देते हैं। ये ब्रह्म शुद्ध श्लोक में लिखा है, यथा प्रणाम समय गणाधीराज। प्रणाम कर शिव जी, एक गणेश जी कृष्ण की स्तुति आदि करते हैं। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे। इसलिए गोविंद के चरण में आप रखो। गोविंद, गोविंद इति गोविंद। गो माने गाय, गो माने ब्राह्मण, गो माने वेद,
गो माने समस्त जिन इंद्रियां, विंदयति आनंदयति इति गोविंद। तो सबके गो ब्राह्मण गाय इंद्रिय आदि सबको क्या देते हैं? आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनके नाम है गोविंद कहा जाता है। गोविंद की यदि भजन नहीं किया जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंदरी। अब गुजराती में एक गिरी गुच्छा निकाला कि नहीं? हाँ निकाला चाहिए। तो लोग गौड़िया गिरी गुच्छा जाए आपके अपने गुजराती भाषा में निकालो, जन जन के पास एक कीर्तन को पहुंचा दिया जाए, है? हो जाएगा। ये आपकी दायित्व है, आपका ही दायित्व है। हाँ इसकी करो, ये अतीब जो है जरूरी है। क्योंकि गौड़ीय सिद्धांत जो है बहुत उच्च स्तर के है। क्योंकि जब गौड़ीय सिद्धांत महाप्रभु के सिद्धांत नहीं समझे तब वास्तव रूप में सब भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लोग इधर उधर की कथा आदि सुनकर के बोल देते हैं, कीर्तन आदि बोल देते हैं, किंतु ठीक नहीं है। महाजन की पदावली इसमें लिखा है, महाजन पदावली। क्या लिखा है? महाजन पदावली। महाजन किसको कहते हैं? जो कृष्ण भक्ति में डूबे हुए, कृष्ण राधा कृष्ण के छोड़ करके और कुछ नहीं जानते हैं, उसी की कहा जाता है महाजन कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में 12 महाजन के नाम पाया जाता है। कितने नाम महाजन? 12। कौन कौन जानते हैं? हाँ विदुर जी, अदु शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वयासकी वयम। स्वयं जब महाराज जी का रहे। हम लोग 12 महाजन हैं। शंभु नारद शंभु, शंभु नारद, शंभु माने ब्रह्मा जी, शंभु नारद जी, शंभु शिव जी, शंभु नारद शंभु, शंभु नारद शंभु प्रहलाद जनको भीष्म, प्रहलाद महाराज, भीष्म महाराज जी, शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु। 4 कुमार के नाम भी आ रहे। कुमार कपिल देव भगवान है, शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु, मनु जी है ना। ब्रह्मा जी की जो मानस पुत्र पहले उत्पन्न हुई इसके मनु कहा जाता है, मनु शतरूपा। शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु। प्रहलाद महाराज, जनक महाराज और भीष्म। तो कितना हो गया? गिना गिने आप लोग? गिने ही नहीं है, गिना ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वयासकी वयम। बलि महाराज और बलिर्वयासकी वयम। बलि महाराज और वयासकी सुखदेव है और जम महाराज। कितना हो गया? ये श्लोक याद करो। शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वयासकी वयम। वयम माने हाँ, वयम किसको कहा गया? अरे जम महाराज, वो यम जम महाराज जो मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता, स्वयं जम महाराज जी कह रहे हैं हम लोग 12 महाजान है।
बया माने हम लोग। कौन बोल रहे हैं? कौन? जमराज। जमराज करे हैं। ये 12 महाजन है। इसे कहा जाता है इससे भी श्रेष्ठ और भी गौड़ीय वैष्णव की कहा जाता है ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब सर्वोत्तम महाजन कहा है। महाजन शब्द के अर्थ क्या? जो मानी लेनदार की महाजन कहा जाता है। पहले पहले जो लोग मानी को देते थे, रेंट क्या बोले, नहीं वो क्या बोलते हैं, लोन देते थे, उससे उनको इंटरेस्ट मिलता, उसके लोग महाजन कहते थे। किंतु यहां पर महाजन उसी कहा जाता है जिसके कृष्ण प्रेम है। प्रेम प्रदान करने वाले व्यक्ति के ही महाजन कहा जाता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे जनों के कहा जाता है पारमार्थिक महाजन। ऐसे महाजनों की पदावली कीर्तन करने पर हृदय में भक्ति हो। जैसा अभी कीर्तन करे गोविंद दास के कीर्तन क्या बोल रहे? भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंदरी। भजहु रे मन, मन को करे ये मन, तुम गोविंद के भजन करो। इसे भज ही रे मनो श्री नंद नंदन, किसके भजन करो? श्री नंद नंदन। क्यों कह रहे? ये अनुभव किया गोविंद दास। पहले दुर्गा की आराधना करते थे। कौन? ये गोविंद दास। सुनिए, किसकी आराधना करते थे? देवी दुर्गा की आराधना कर, दुर्गा देवी की आराधना करते थे। जीवन में कुछ नहीं मांगा। जब वृद्ध हो गए गोविंद दास, दुर्गा देवी के बोले मां तो मुझे मुक्ति दिला दो। क्या दे दो? मुक्ति दिला। उस समय देवी कहने लगी, हे गोविंदा, हम लोग मुक्ति दे नहीं सकते। जितने भी देव देवियां हैं ये मुक्ति दे नहीं पाएंगे। धर्म अर्थ काम ये तीनों दे सकते हैं, वो भी गोविंद से लेकर के। मुक्ति कौन देने वाले हैं? अरे बोलो। मुकुंद भगवान के नाम है मुकुंद। मुक्ति ददाती जौस इति मुकुंद है। देखो तब वो गोविंदास को कहने लगे मेरे पास सब कुछ तो है, धन संपत्ति लेकर के क्या करेंगे? छोड़ करके चले जाएंगे। तो मुक्ति देने वाले कौन है? गोविंद। गोविंद के एक नाम है मुकुंद। मुक्ति ददाती जौस इति मुकुंद। इसका आप समझने के लिए प्रयास करें, इसे करें। तब उन्होंने कहा कि देवी कहने लगी हम लोग मुक्ति देने वाला नहीं है, एकमात्र जो है मुकुंद गोविंद। अरे तुम यदि चाहते हो मुक्ति, क्या करो? एक गोविंद के भजन करो। मुक्ति के ऊपर भी कहा जाता है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम कौन देंगे? स्वयं भगवान गोविंद। इसलिए करें भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंदरी। इसलिए गोविंद के भजन करें। गोविंद के भजन करें, सब कुछ प्राप्ति हो जाए। रिद्धि सिद्धि दान संपत्ति सब कुछ प्राप्ति हो जाए। ऐसे नहीं जो केवल प्रेम हो जाए, क्योंकि जगत के लोग प्रेम के बारे में जानते नहीं। किंतु प्रेम किसको प्राप्ति हो जाए? धन संपत्ति अपने आप सबकी प्राप्ति हो जाए।
इसलिए स्वयं गोविंद के चरण में रिद्धि सिद्धि आदि विराजमान रहते हैं। इसलिए भगवान गोविंद के कहा जाता तीर्थ पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थ पद। समस्त तीर्थ धन संपत्ति सब गोविंद के चरण में है। इसलिए घर में गोविंद के भजन करें। गोविंद के यदि घर में नहीं रखा और सबको रख दिया, जीवन में लाभ कुछ नहीं। और वही गोविंद आपके सबकी रक्षा करते हैं। थोड़ा विचार को थोड़ा अच्छी तरह से समझने के प्रयास करें। हम इसे कहते हैं गौड़ी सिद्धांत में ये दिया जाता है, एक ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ईश्वर गोविंद के भजन करे भाई। जब तक गोविंद के नहीं भजन करें, कोई देव देवी आप कुछ नहीं कर सकते। ये देव देवी आपके सब कुछ एक दिन छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उनके तो पद रखा गया उतने दिन तक है। देखो देव देवी के पद से परमानेंट पद नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी पद रहते हैं, उनके कार्यकाल कुछ समय तक रहता है। रहते नहीं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल कितने दिन तक रहेंगे? 5 साल। 5 साल के बाद बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। इलेक्शन में हार गया तो नहीं बन सकते है कि नहीं? तो अथवा बन भी गए किंतु उसके पार्टी यदि स्ट्रांग नहीं हो और उसके नीचे गिरा देंगे, कहां बन पाए? इसलिए कह रहे इस जगत ये एक जो हम इसलिए कह रहे हैं काली शिव दुर्गा आदि जो एक के वर्णोत्तर पद विशेष कहा जाता है। और भगवान गोविंद की इच्छा से वो पद प्राप्त कर, भगवान उसे पद दे देते हैं। इसी के समझने के प्रयास करो। एक व्यक्ति ब्रह्मा जी के पद कब तक रहेंगे आप जानते हैं कि नहीं? उनकी जीवन की 100 साल तक। आफ्टर 100 years ब्रह्मा जी रिटायर फ्रॉम दी। जब रिटायर हो जाएंगे उसे काम को जाए। इस संसार में भी देखिए एक प्राइम मिनिस्टर बन गए, 5 साल के बाद यदि पद नहीं है उसको क्या कहेंगे? एक्स लगा देते उसको, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स फाइनेंशियल मिनिस्टर है। जब तक पद में थे बहुत सम्मान लोग देते, किंतु जब पद से हट जाते हैं और उतनी उनकी मर्यादा नहीं रहता है, उतना उनकी फैसिलिटी नहीं रहता उनकी। ठीक उसी प्रकार ये देव देवी जो आप बता रहे हैं, जिसके शास्त्र में वर्णन है, कितने हिंदू शास्त्र में कितने देव देवियां हैं? 33 करोड़। अच्छा बात ये सही है कि नहीं है? क्या बोले हैं? अरे करोड़ शब्द तो हिंदी में कहा थे है। अरे कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के हैं। कितना है? 33 प्रकार के हैं। 33 प्रकार के देव देवियां हैं, हजारों। तो इसकी समझने के लिए प्रयास कर लीजिए। कोई देव देवी हमें आपको रक्षा भी नहीं करे, किंतु गोविंद आदि पुरुषम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। वो सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद जय सत्य सर्व सत्य सदा सर्वदा विराजमान है। इसलिए भागवत में पहली श्लोक में कह रहे हैं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। इसलिए काल मैंने कहा था व्यासदेव जी जितने भी ग्रंथ रचना की विघ्न नाश करने के दूर करने के लिए
कहीं गणेश जी की भी वंदना कर दी, कहीं दुर्गा देवी की वंदना कर दी, कहीं और कुछ देव देवी की वंदना की, और पुराणों में। किंतु श्रीमद् भागवत में किसी देव देवी की वंदना नहीं की। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण श्रीमद् भागवत में एकमात्र भजन श्याम सुंदर की ही वंदना की, क्योंकि सत्यं परम धीमहि, ये परम सत्य जो है स्वयं भगवान कृष्ण, उस परम सत्य भगवान कृष्ण की ही सब आराधना करें, उनकी चरण कमल की वंदना करें। इसलिए गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में तू आ जाए। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन के लक्ष्य करके सब जीवों के उपदेश दे रहे हैं। गीता की तात्पर्य यही है, समस्त जीवों के भगवान क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन तो केवल मात्र लक्ष्य कर रहा है, किंतु वास्तव में सारे जीवों के सब जीवों के जो है उपदेश है। अर्जुन तो भगवान के नित्य परिकर है, उनको उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु तथापि अर्जुन के लक्ष्य करके है सब जीवों के जो है उपदेश दे रहे हैं। इसे कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। क्यों? मैं ही भगवान हूं, मैं सर्वोपरि हूं। मत्तं परतर नन्नात् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। इसलिए घर में किसको रखना चाहिए? श्रेष्ठ व्यक्ति के रखना चाहिए कि निकृष्ट व्यक्ति के रखना चाहिए? आप ही बताइए। कृष्ण को रखिए, कृष्ण की मूर्ति रखिए। ठीक है, आपके यदि श्रद्धा इतने पक्का नहीं हो रहे, बोले और देव देवी के रखना पड़ेगा। हम अपने कुल देवता परंपरा में आते जा रहे हैं, देव देवी को कहाँ करें? हम सब रखते हैं। हाँ, आप सब रखिए, ठीक है, किंतु कृष्ण के कहाँ रखे? सबके ऊपर रखे। यदि कृष्ण के नहीं रखा और सब देव देवी के रखा, उस घर में कल्याण नहीं होगा। है कि समझ में? सबसे ऊपर किसको रखना पड़ेगा? कृष्ण के रखो, है? और कृष्ण के रख करके उसके नीचे सारे देव देवी के रखो, कोई भी बात नहीं, सब उनकी आज्ञा वही सेवक है? जितने भी देव देवियां हैं भगवान के सेवक सेविका कहा जाता है। ठीक है, सेवक की जरूरत है कि नहीं है? सबको सेवक की जरूरत है। सेवक के लिए भी है, उसके भी एक कमरा चाहिए, ठीक है, किंतु मालिक जिस कमरे में रहेगा सेवक उस कमरे में नहीं रहता है। नौकर को कहाँ रहते हैं? अलग कमरे में रहते हैं ना, मालिक के कमरे में एक साथ में रहेंगे, एक ही आसन पर बैठ जाएंगे। है बैठते कि नहीं? बता, आप मालिक हो, आप अपने बिजनेस पर जिस चेयर पर आप बैठते हो उस कुर्सी में कौन बैठता है? नौकर जो आपके चौकीदार जो रखा गया वहां पर बैठ जाएंगे। अरे हाथ की ना बोलो, नहीं है। यदि आपकी चेयर पर यदि आपके नौकर बैठ जाए, आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। है इसके आपको इंसल्ट करेंगे, आपको इंसल्ट हो जाता है कि नहीं? मैनेजर के पोस्ट मैनेजर में रहता है, सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड में रहेंगे। सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े होते हैं, डंडा लेकर के अथवा बंदूक लेकर के खड़े रहते हैं। और वो सिक्योरिटी गार्ड यदि आपके अंदर में जो चेयर है जिसमें आप बैठते हो, मालिक बैठते हैं, कितने कार बेचा, कितने कार आया, कितना आमदनी रफ्तानी कितना हुआ है, एक महीने कितने लाख कार आया, कितने लाख कार आपने बेचा,
मैं जानता नहीं आपके कितने कार बेचते हैं, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं। कहां कहां से कार लेकर के आया, कहां कहां से आया, आप हिसाब रखते कि नहीं रखते? रखना पड़ता है। तो उसी चेयर पर सिक्योरिटी गार्ड आकर के बैठे, आपको क्या लगे? अच्छा नहीं। उस सिक्योरिटी गार्ड को आप निकाल दो, और हमारे सीट पर तुम बैठ गए, तुम मालिक बन गया। नहीं, निकालना नहीं चाहिए। निकालना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड अपमान करेंगे, आपको निकालना नहीं चाहिए। अपमान किया तो उसको एक बार समझना है। अरे उसको निकाल दो, जो निकालना नहीं चाहिए कभी भी। वो पागल है। पागल को भी समझना चाहिए। पागल के देना चाहिए। पागल के क्या, सुना मेरा बात, पागल के यहाँ पर पगला घर है ना, वहां पर भर्ती कर दो। इलाज ठीक से कराए तब ठीक होगा, नहीं तो फिर दोबारा बैठ जाए। उसको समझ शक्ति देना चाहिए। अरे उसके समझ ही गया, नहीं तो जी समझते आप, अरे नहीं जो समझते आपके सीट पर नहीं बैठते, हाँ नहीं बैठेगा वो। यदि बैठे मतलब समझे वो पागल है। वो बोला उसको भी ऐसे लगता है एक दिन में बैठ लो, एक दिन बैठ लूं, उसको भी लगता है ना। हे भगवान, बहुत दयालु। ये नहीं है। सुनो, बैठने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए ना। जैसे बैठ जाए प्रधानमंत्री पद, आप बैठ जाओगे? नहीं बैठना चाहिए, लेकिन कभी तो अभी कभी बैठ जाते हो आप। समझ आदमी हो तो नहीं बैठता है। समझता नहीं तो पागल कहा जाते है। उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड उसको निकाल देते हैं। आज में एक मर्यादा होता है, मर्यादा जहां पर उल्लंघन हो जाता है वहां पर समाज ध्वंस हो जाता है। समाज की जो है इसलिए इसे समझने के प्रयास करो। सब अपने अपने अधिकार के, मैं इसलिए कह रहे हैं सारे देव देवियां जो है सब भगवान के सेवक सेविका कहा जाता है। इसलिए कहते हैं, जिसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, मत्तं परतर नन्ना किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। मत्तं परतर नन्ना किंचित, ब्रह्मा शिव आदि ये सब मेरा किंकर है, सेवक सेविका है। शिव जी क्या करते? 5 मोह के द्वारा, एक नहीं 5 मोह के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी 4 मोह के द्वारा, चतुर्मुख ब्रह्मा है। इसलिए कह रहे हैं, क्या करें? गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। देख, ब्रह्म संहिता में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। गोविंदमादि पुरुषं, ब्रह्मा जी करे, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, आपके चरण में मैं बार बार नमन करता हूं। ब्रह्मा शिव नारद जितने बड़े और दिक्पाल, इंद्र आदि सारे दिक्पाल स्वयं गोविंद के चरण में स्तुति आदि करते रहते हैं। आज ये विचार दिखा रहे। इसलिए घर में क्या रखो? गोविंद के सर्वोपरि स्थान रखो। मंदिर सुंदर बनाया किंतु मंदिर में गोविंद की स्थापना नहीं किया, कृष्ण के स्थापित नहीं किया। इसलिए वो गृह नहीं हो जाएंगे। इसलिए घर में रखो, कैसे रखो? गोविंद के ऊपर रखो, कृष्ण के रखो, राम के रखो। ये विष्णु तत्व, जैसे आप जो आपकी इच्छा है विष्णु तत्व में, जैसे विष्णु के कोई रखते हैं, जो विष्णु भक्त है वो किसको रखते हैं? चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु के ऊपर रखते हैं, विष्णु के रखते हैं। जो राम भक्त है वो राम को कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। और जो कृष्ण भक्त है वो सर्वोपरि कृष्ण की रखते हैं। एक के भजन करो, एक के जो साधे सबके साधे, और सबके जो साधे वो किसी के न साधे।
साधन करना है, एक ही साधन करो। गोविंद के साधन करने से, गोविंद के भजन करने से सब कुछ हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान करें मत्तं परतरो नन्ना किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है। ये अहंकार की बात नहीं है। जैसे घर के मालिक कौन है? आप हो, है कि नहीं? आप तो आप सब आपके सम्मान करते हैं, आपके पुत्र कन्या आदि पिताजी करके सम्मान आदि करते हैं, करते कि नहीं करते? पिताजी के स्थान पिताजी के पर रहता है। आप ही बताइए, आप जो कह रहे कभी कभी सोचे मैं भी पिताजी के स्थान पर बैठ जाऊं, आपके बेटा यदि सोचे, ये गलत होगा कि नहीं? गलत होगा, है? आप बताओ गलत क्या है? तो आपकी पत्नी क्या कहेगी? अरे तू मेरा बेटा है। थोड़ा समझदार होनी चाहिए, है? पिताजी के स्थान पिताजी के पर रहता है, पिता माता के स्थान रहता है? पिताजी माताजी हमारे सर्वोपरि है, पहले समझो। पिता माता सर्वोपरि है, और बेटा यदि कहे नहीं मैं भी बैठ जाऊं पिताजी के स्थान पर, एक गलत होता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की ये गलत सिद्धांत हो जाता है। माता पिता के स्थान सर्वोपरि जैसे होता है संसार में, पुत्र संतान आदि माता पिता की सेवा करे, ये समझ तो विचार रखना चाहिए। नहीं कोई आप जैसे कह रहे नौकर को भी सोचे मैं भी मालिक के आसन पर बैठ जाऊं, गलत होता है, अपसिद्धांत हो जाता है? हाँ, ऐसे नहीं। इसलिए सर्वोपरि हमारे माता पिता कौन है? गोविंद। तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु सखाश्चतन, तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा। पर वृंदावन में तुम्हें मम देव सर्व, इसलिए स्वयं भगवान ये गोविंद के लिए स्तुति हो रहे हैं, वही हमारे माता पिता है। गोविंद की हम सब आराधना करें। इसे कहता है हरि रेवो सदारद्ध सर्वदेवे सरेश्वर इतने ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। सर्वोपरि हरि कृष्ण के ही सर्व रखे और ब्रह्म रुद्र आदि सबकी सम्मान करे। असम्मान करना नहीं है, किसी देव देवी के असम्मान करना नहीं चाहिए, सबके सम्मान करो, है? क्योंकि सारे देव देवियां फिर पुनः वैष्णव कहा जाता है। ये सारे देव देवियां कृष्ण की भी भजन करते हैं, है? आज ये सारे देव देवी क्या है? वैष्णव व वैष्णवी कहा जाता है। जैसे देखो आप जाते हैं ना, वैष्णवी देवी गए कभी आप? नहीं गए, है? और वैष्णवी देवी देवी ही जो है उसमें वैष्णवी है, वैष्णव देवी कहा जाता है? इसलिए किसी देव देव की निंदा करना नहीं चाहिए, सबके सम्मान करो, किसी का निंदा नहीं करना, निंदा नहीं करना, किंतु सबको एक समझना नहीं चाहिए। अरे बराबर नहीं, छोटा या बड़ा किसी का निंदा नहीं करना, निंदा करना नहीं चाहिए बस, है? इसलिए ओरी रेवो सदा रद्द सर्वदेवे सरेश्वरो इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। नावज्ञा, किसी को अवज्ञा मत करिए, सबके सम्मान दो, जय जैसी स्थान पर है तो जैसे है उसी के सम्मान दो। हाँ, खुश रहे, किसी का अपमान नहीं करते। जो झाड़ू देने वाले झाड़ूदार है? जो ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर कहा जाता है। सब अपने अपने स्थान पर रह करके सब सेवा कर रहे हैं, सब राष्ट्र के सेवक है। एक होता है राष्ट्रपति और एक है राष्ट्र सेवक, है? एक होता है राष्ट्र के पति माना जाता है राष्ट्रपति, है? और बाकी सब राष्ट्रीय सेवक कहा जाता है। हमारे संविधान में ना राष्ट्रपति कहां पर, उनके स्थान कहां पर है? सर्वोच्च स्थान पर है, राष्ट्रपति कहा जाता
है। वर्तमान जो राष्ट्रपति है क्या नाम है? द्रौपदी माननीय द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अपने सब स्थान पर है कार्यकाल तक। अरे है। किंतु इसे और बाकी सबको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सेवक। प्रधानमंत्री के जितने मंत्री जितने एक छोटे से छोटे सेवक है, झड़दार भी सब राष्ट्र की क्या है? सेवक कहा जाता है। एक राष्ट्रपति और एक राष्ट्रीय सेवक है। यही हमारी शिक्षाएं हैं। सबके सम्मान होनी चाहिए। एक झड़दार की भी हम सम्मान देंगे है? क्यों? ये सेवा अधिकार है। आ जाए। सबसे बड़े कठिन कार्य क्या है? झाड़ू देना, सेवा करना कठिन कार्य है? सबसे कठिन कार्य है। इतने सहज नहीं है। सब कुछ आदि साफ सुधार रखना, स्वच्छंद परिष्कार आदि रखना, ये कितने कठिन कार्य होता है। इसलिए उनको भी हम सम्मान देंगे। इसलिए कहा उसी प्रकार सारे देव देवियां भगवान की इच्छा से आज्ञा से सब कुछ कार्य करते हैं। सूर्य चंद्र देवता आदि अपने अपने स्थान पर रह करके सेवा आदि करते जा रहे हैं। और गोविंद की इच्छा से उनके आदेश से सूर्य पूर्व दिशा पर उदित होता है और पश्चिम दिशा पर अस्त होता है। चंद्र आदि इतने सभी वरुण आदि जितने देव देवी सब अपने अपने कार्य आदि कर रहे हैं। किसी की अवज्ञा करना नहीं चाहिए, सबके सम्मान करो। इसलिए श्लोक की याद रखना चाहिए। हरि रेवो सदारब्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। इतरे ब्रह्मा रुद्र आदि ब्रह्मा शिव आदि जितने देव देवी हैं सबके ठीक से सम्मान करो। असम्मान किसी को करना नहीं चाहिए। यही शास्त्र के विचार हम करें। इसलिए घर में सर्वोपरि किसको रखो? गोविंद के रखो। गोविंद के रखो, देखो घर में सुख शांति रहेगा। और गोविंद के छोड़ करके यदि सब कुछ कर लिया, बोले वो गृह में शांति नहीं हो, अशांति फैल जाएगा। इसलिए देखो घर में क्या करो, आज से रखो। क्या रखोगे? गोविंद के रखो। यहाँ पर एक सुंदर मूर्ति रखाओ गोविंद की। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। प्रातः काल में उठ करके गोविंद के चरण स्पर्श करें, गोविंद की स्तुति करें। देखो आपके गृह में मंगल मंगल ही होगा। सर्व मंगल मंगली, समस्त मंगल किस में होता है? एकमात्र गोविंद के नाम। गोविंद की स्तुति करने पर सब कुछ हो जाता है। और कलियुग में वही गोविंद नाम के रूप में ही प्रकट हुआ है। कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु न रहो उतर ही पारा। कलियुग में ये नाम कीर्तन के कहा है। सप्तयुग में लोग ध्यान करते थे। त्रेतायुग जजते मकई, त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, स्वाहा स्वाहा। दापर युग में अर्चन करते थे और कलि युग में नाम संग कितने तो विष्णु। त्रेतांग जजते मखई दापरे परिचर्जन और कलु केशव संकीर्तनम। कलियुग नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कलियुग में नाम संकीर्तन कौन सा नाम करे? ये भी आपकी विचार होगा।
सुनिए ध्यान से, अभी कथा को समाप्त करते हूँ। 2 बज गए, फिर हमें 5 बजे से कथा भी शुरू होगी। एक बार कैलाश में, जहां पर शिव पार्वती विराजमान होते हैं, स्वयं देवी पार्वती शिव जी के सेवा आदि करते, भोजन आदि प्रस्तुत करते रहते हैं। एक दिन पार्वती देवी के भोजन प्रस्तुत करने में देर हो गई। क्या हो गया? देर। तो शिव जी बोले, देवी पार्वती आज भोजन देना तुम्हारा देर क्यों हो गया? तो उस समय देवी पार्वती बोले, देखो महादेव जी, पतिदेव, मैं आज एक नियम व्रत ले लिया। क्या व्रत लिया? ये हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम कीर्तन करके, स्तुति करके फिर मैं भोजन बना। 1000 विष्णु नाम कीर्तन के बाद मैं भोजन करूं। इसलिए आज मैं जो व्रत लिया, 1000 कितने विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 विष्णु नाम लेकर के मैं भोजन, इसलिए आज देर हुई। तो महादेव जी कहने लगे, देखो देवी, तुमको मैं ये गोपन कथा सुनाता हूं, सुनो। तुम 1000 विष्णु नाम जप करने में जो फल होता है, 3 बार राम नाम करने से वो फल हो जाता है। देखो 1000 विष्णु नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते पढ़ते आपको कितना समय लगता है? जो समय लगता है, वह जो पढ़ने में जो फल होता है, केवल बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। क्या फल मिला? 1000 विष्णु नाम पढ़ने में जो फल प्राप्त होता है, 3 बार राम नाम जाकर जो फल हो जाता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ देखा कि नहीं देखा? छोटा ग्रंथ है, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम लिखा, 1000 विष्णु के नाम है पढ़ते। कितने समय लगेगा? 15 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा। और 3 बार राम नाम करो, कोई फल हो जाता है। तो संक्षेप हो गया कि नहीं है? समय बच गया कि नहीं है? तो इस कथा को सुन करके देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हो गया। बोले अच्छी बात है। बोले इससे और कोई संक्षेप है? महादेव जी कहने लगे, हाँ देवी, और इससे संक्षेप नाम है? बोले 3 बार राम नाम करने से जो फल होता है, 1 बार कृष्ण नाम करने से फल होता है। 1 बार कृष्ण नाम कर दो बस, है हरे कृष्णा, 3 बार राम नाम की फल प्राप्ति हो है। इस कथा के सुन करके देवी पार्वती कहते, और कोई संक्षेप नाम है? इस कथा को सुन करके महादेव कहने लगे, ये बहुत गोपनीय कथा है देवी। देखो 100 बार कृष्ण नाम करने में जो फल होता है, 100 बार कृष्ण नाम करो, कृष्ण 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 कृष्ण, कितना बार हो गया? 100 बार। बोले 100 बार कृष्ण नाम करने जो फल होता है, 1 बार राधे। तो सबसे स्वीट नेम कौन है? राधा है। हाँ हिसाब लगा दिया। तो कौन सा नाम जप करना चाहिए? बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय,
बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे मैं तेरा तो राधा राधा नाम सखी तेरी चरणों में हो मैं तेरा तो राधा राधा नाम सखी तेरी चरणों में मैं तेरा तो राधा राधा नाम सखी तेरी चरणों बोले तेरा तेरा तेरी चले हेलो राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधे राधे हेलो राधे 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 जय जय राधे बोलो राधे 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 जय जय राधे राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी जय राधा रानी की जय बोलो राधे 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 जय जय राधे बोलो राधे 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 जय जय राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय जय राधा रानी की जय बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम जय जय श्री राधे जय वृंदावन आज की आनंद की जय। हाँ ये ग्रंथ भी आप लोग संग्रह करिए, गुजराती में लिखा है, बहुत सुंदर। व्यास पूजा हमारे गुरुदेव की जो है जन्म के बारे में, गुरुदेव के बारे में लिखा है। ये ग्रंथ आप रखिए, इसको पढ़िए, आप आनंद आ जाए।